நம்பவே முடியலையே. கண்டிப்பா இது உண்மையா இருக்காது. ஒரே நாள்ல இத்தனை விஷயம் நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சாரி. நீ ஒரு நல்ல அத்லெட்னு இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. பயங்கர ஸ்பீடா ஓடுற. அப்படின்னா நான் அங்க இருந்தேன்னும் உன்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியும்ல. அதை திரும்ப ஞாபகப்படுத்தாத. நினைச்சால வெறுப்பா இருக்கு. ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியல. நீயும் எரிக்காவும் மூவி போறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பொறுத்துக்க முடியாம தான். ஆனா எரிக்கா அண்ணா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் இதுலயே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் என்னால என்ன பண்ண முடியும்? எங்க போலாம் சொல்லு. ஆ எங்க போலான்னு கேட்டேன். நானும் ஜோவும் சேர்ந்து இருக்கோம். கனவுல நடக்கிற மாதிரியே இருக்கு. வாழ்க்கையில கிடைக்கிற மொத்த சந்தோஷத்தையும் நான் ஒரே நாள்ல அனுபவிக்கிற மாதிரியே இருக்கு. நான் இப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். இங்க நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்திருக்காங்க போல இருக்கு. ஆனா அவங்கள நம்ம மட்டும்தான் கப்பிள்ஸ்ல. ஆமா, நாம மட்டும்தான். ஆனா இங்க போட்டிங் வர கப்பல்ஸ் எல்லாம் 6 மாசத்துக்கு மேல ஒன்னா இருந்ததா சரித்திரமே இல்ல. அது உனக்கு தெரியுமா? நீ கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்ட, ஆனா நிறைய பேருக்கு தெரியும். சரி விடு, எதுக்கு வருத்தப்படணும்? நாம என்ன உண்மையான கப்பல்ஸா? இத பாரு, நாம உடனே கிளம்பணும். ஏய் ஏய் சானியா, ஏய் ஏய் சானியா. ட்ரெஸ் எல்லாம் ஈரமாயிடுச்சு. போய் இதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வா. விலை கம்மி தான், இருந்தாலும் ஈர துணிக்கு இது பெட்டர் இல்லை. ரொம்ப பார்க்காத, ரோட் சைட் கடையில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். உனக்கு பிடிக்கலையா? ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸா? இது கப்பல் டி-ஷர்ட்டா? நான் ரொம்ப பசியோட இருந்தேன். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. பிரெஞ்சு இட்டாலியன் டிஷ்ஷோட ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. ஆனா இனிமே இந்த மாதிரி ஒரு ஹாம்பர்கரை என் லைஃப்ல மறுபடியும் சாப்பிடுவேனான்னு தெரியாது. இந்த நிமிஷமே உலகம் ஸ்தம்பிச்சு போனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சாப்பிடு, சும்மா அதையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காத. ஆமா, நீ ஏன் என் கைய மட்டும் பிடிச்சிட்டு ஓடி வந்த? அங்கதான் எரிக்காவும் இருந்தால. ஏன்னா அப்போ என் பக்கத்துல நீ மட்டும் தானே இருந்த. தேங்க்யூ. என்னால தானே உனக்கு எப்பவுமே ப்ராப்ளம். நான் என்னோட வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் எந்த விதமான கஷ்டங்களையும் அனுபவிச்சதே இல்லை. ஆனா உன்னை பார்த்ததுல இருந்து நான் ஒரு புது உலகத்துல இருக்கிற மாதிரி உணர்றேன். என்னமோ சடனா ஒரு கஷ்டமான மேக்ஸை சால்வ் பண்ணணும் போல ஃபீல் பண்றேன். அந்த சம் என்ன எவ்வளவுதான் டெஸ்ட் பண்ணாலும் அதை சால்வ் பண்ணாம என்னால அவாய்டும் பண்ண முடியல. நீ இப்ப சொன்ன விஷயம் என்ன பத்தி தானே? ஆரம்பத்துல அதோட எப்படி டீல் பண்ணோன்னு தெரியாம இருந்தேன். அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஒளிஞ்சிருந்தேன். ஆனா இனிமே அதுக்கு பயந்து ஓடக்கூடாது முடிவு பண்ணிட்டேன். அந்த கேள்வி எவ்வளவுதான் கஷ்டமா இருந்தாலும் அதுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்காம விட மாட்டேன். ஒரு கை பார்க்க போறேன்.
ம்? என்னையா ஒரு கை பார்க்க போற? உனக்கு புரியல விட்டுரு. இல்ல புரியுது. நீ சொல்ல வந்தது இன்டைரக்டா என்ன பத்தி. இது வரைக்கும் நீ என்னை விட்டு தூரமா இருக்கணும்னு நினைச்ச. ஆனா உன் மனசை மாத்திக்கிட்டு இப்போ என் கூட நீ 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 என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணியா? நீ எப்படி சரியா கேட்காம அந்த முடிவுக்கு வரலாம்? உன்னை பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது. நீ கூட இருக்கிறது பிடிக்கலனாலும் உன்னை எனக்கு பிடிக்கலன்னு எடுத்துக்காத. தேங்க்யூ. இங்க உனக்கு என்ன பிடிக்காம போயிடுமோன்னு நினைச்சேன். ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து நான் எப்பவுமே ஓ மேலதான் கண்ணு வச்சிருப்பேன். என்கிட்ட எந்த வித ஸ்பெஷாலிட்டிஸும் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். எனக்கு குக்கிங் தெரியாது. நான் பார்க்க அட்ராக்டிவா இல்ல. ஆனா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதா தெரியும். நான் கண்டிப்பா இந்த மாதிரியாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன். நிஜமா? அதைத்தான் நான் பார்க்க போறேனே. உன் அறிவை வளர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னல, அதை மீன் பண்ணி தான் சொன்னேன். சரி, மிட் டர்ம் எக்ஸாம் வேற இந்த மந்த் எண்ட்ல நடக்க போகுது. இப்ப நீ என்கிட்ட சொன்னத அந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட்ல நிரூபிச்சு காட்டு. ஓகே? மிட் டர்ம்லயா? எனக்கு எக்ஸாம்னாலே பிடிக்காது. எக்ஸாம்ஸ்னா யாருக்கு தான் பிடிக்கும்? உனக்கு சி கிரேட் எடுத்தா போதுமா? சியா? இப்படி சொல்றதுக்கு உனக்கு வெக்கமா இல்ல? அப்போ சி பிளஸ்? நான் நினைச்ச மாதிரி எதுவும் மாறலன்னாலும் அவன் என்னை பார்த்து சிரிச்ச விதம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அவனுக்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்தப்ப விட, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் என்னை கிஸ் பண்ணப்போ விட, இப்பதான் அவன் என்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கான். என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து விட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த டேட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த வீடு வசதியா இருக்கா? என்னோட ரூம் சின்னதா இருந்தாலும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நாங்க ஒன்றும் இங்க பெர்மனண்டா இருக்க போறது இல்லைல்ல. எங்க சொந்த வீட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சா திரும்பவும் அங்கேயே போயிடுவோம். பிரச்சனை எதுவும் இல்லைல்ல? என்னது? எரிக்காவை பத்தி தான். நீதான் அவளை அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டால. அவ தனியா இருந்திருப்பாளோ என்னமோ. பரவாயில்ல, அவ கூட தான் கிறிஸ்டன் இருக்கான்ல. எரிக்கா, நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும். இதை நான் ரொம்ப நாளாக உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். ப்ளீஸ் கேளு. என் வாழ்க்கையில் நான் ஆசைப்பட்ட எதுவுமே எனக்கு கிடைச்சதில்ல. என்ன என்ன சொல்ல வர? வேணும்னா இதையும் சாப்பிடு. இல்லை, நான் சொல்ல வந்தது சாப்பாடை பற்றி இல்லை, அது வேற விஷயம். அது என்னன்னா, நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும்னு நிறைய தடவை முயற்சி பண்ணியிருக்கேன். पर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता ही रहता हूँ मैं. क्या मैं जाऊँ? थोड़ा सर दर्द हो रहा है. सर दर्द हो रहा है? तुम्हें दवाई लेनी चाहिए. दवाई. तुम आराम से बैठो, मैं पे करके निकलती हूँ. एरा, जानता हूँ मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, पर तुम्हारी आवाज और जोर से आने लगी. मेरे दिमाग में तुम्हारे ख्याल भर गए. बस यही कहना था तुमसे.
क्या हुआ पापा? कुछ अच्छा हुआ है क्या? क्या? नहीं, क्या होगा? काश कुछ अच्छा हो जाता। क्यों? कुछ हुआ है क्या पापा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नए घर को बनने में जरा ज्यादा वक्त लगेगा। नेचुरल डिजास्टर था, इसलिए इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा, और जो कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे पापा? चिंता मत करो बेटा, वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। बस यहां रहने में थोड़ी तकलीफ होगी। इट्स ओके। आई एम सॉरी हनी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो पापा? ट्रस्ट मी, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। ओके। ओह हेलो। ठीक से घर पहुंच गई थी ना? ओह कल? हाँ बिल्कुल ठीक से चली गई थी। क्वांगसो तुम्हारे साथ था तो मुझे पता था सब ठीक ही होगा। लगता है तुम्हें मेरी फिक्र है। पर बहुत मजा आया, ऐसा लगा कोई मूवी चल रही है। रैगिंग फ्रॉम गैंगस्टर। अच्छा है तुम ठीक से पहुंच गई। अंदर चले? हाँ, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है, एक क्वीन लगती है। तुमने तो बहुत सारी फोटोज ली है। ये देखो कितनी प्यारी है। वैसे कल एग्जैक्टली क्या हुआ? डेट पर गए थे ना? क्या डेट, सिर्फ वो खा के निकल गए। मुझे खाने के पैसे देने चाहिए थे शायद। ओह ये क्या किया तुमने? इतना अच्छा मौका गवा दिया। कह देनी चाहिए थी अपने दिल की बात। मैंने कोशिश की थी दिल की बात कहने की, पर जब मैं हीरा को देखता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ, सिर्फ बकवास करता हूँ। मेरे जैसे लड़के के लिए हीरा को पाना कोई बड़े सपने से कम नहीं है ना। पर क्यों? तुम इतने अच्छे हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन हीरा के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। क्या तुमने सेओंगजो से अपने दिल की बात की? मैंने पहले ही एक लव लेटर दिया था। लेटर? वाह, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। मैं लेटर लिखता हूँ। ओह ये कभी मत करना। हीरा बिल्कुल बेक्सुंगजो जैसी है ना। लेटर से बेइज्जती हो जाएगी। बस उसकी आंखों में देखो और दिल की बातें कह दो। लड़कियों को ये बहुत पसंद है। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाता, आंखों में कैसे देखूं? तो क्या हुआ, प्रैक्टिस कर लो ना। देखो सोचो कि मैं हूँ हेरा। सोचो। नहीं हो पाएगा। क्यों? प्रैक्टिस ही तो करनी है। चलो कोशिश करो। मैं तुम्हें हीरा कैसे मान सकता हूँ? तुम कोशिश करो, मैं बैक्संजो हूँ, बैक्संजो। हाँ कोशिश करो, मैं बैक्संजो हूँ। जब कोई अचानक से प्यार का इजहार करे तो प्यार होना आसान है। मतलब ये तुम ट्राई कर ही सकते हो। अचानक से? क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गए हो क्या? ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ओके? प्रैक्टिस? टाइमिंग जरूरी है, टाइमिंग। देखो अगर लड़की कहे कि है तुम क्या कर रहे हो, तो तुम अपने हाथ को ऐसे रखो, ऐसे, और कहो भूल सकती हो तो भूल जाओ, और फिर उसे किस करो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया है, कमाल है। तो अगर लड़की कहे ये क्या कर रहे हो, तो भूल सकती हो तो भूल कर बताओ। रुको, यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी है। जब लड़की अपना सर ऐसे उठाए तब। जब अपना सर उठाए मैं लड़की बन जाता हूँ। उसकी तरफ देखो ऐसे। तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ?
भूल सकती हो तो भूल कर बताओ। बिल्कुल ऐसा ही ना? ये तो बहुत सही है, तुम्हारा आइडिया बहुत ग्रेट है, ये तो काम करेगा। टाइमिंग। रोहानी, तुम किस करने में बहुत अच्छी हो। सच में तुम तो नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तुम्हें नहीं लगता वो लड़की थोड़ी सी अजीब है? टेनिस क्लब में वो बेक्सम जो के पीछे पीछे जाती रहती है। क्या तुम्हें भी ये खबर मिली है? ओह लगता है कोई मजेदार खबर है। हाँ, हमारी कॉलेज की लड़की अपने पुराने क्रश को भूलकर किसी और लड़के को किस कर रही थी। आगे का जानना चाहती हो? वो भी स्कूल में सरेआम। लेकिन वो बिक्सम जैसे लड़के को छोड़ कैसे सकती है? छोड़ दिया? क्या बताओ तुम्हें, वो भी एक सीनियर के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, बाय। अरे हाँ, अरे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? सुन, मुझे लगता है सोमजो को पता नहीं है ओहानी ने सीनियर को हमको किस किया है, पता है? तो उसके और संजू के बीच में हुआ क्या? इसका मतलब ओहानी सोमजो को धोखा दे रही है। तुम क्या कहना चाहते हो? हीरा, मैं तुमसे कुछ, मैं क्या कह रहा था कि वो तो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। पर वो छोड़ो मुझे, मैं आज ये करके रहूंगा। बहुत हो गया मजाक, मैं करके रहूंगा। अरे मुझे करने दो, आज तो मैं करके रहूंगा। अरे जाने दो मुझे, अरे जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। रोहानी, मैं आज उससे बात करके रहूंगा। अरे छोड़ो मुझे, मैं आज मैं तो बात करूंगा उससे। रोहानी छोड़ो, रोहानी मुझे लग रही है, छोड़ो मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और क्वांग किस इम्पॉसिबल। सच्ची? तुमने किया ना किस? नहीं, मैंने तो, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उसे सिखा रही थी। मतलब किसके बारे में? ओहानी, अरे नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? सॉरी। हाँ। अरे देखो, वही लड़की है जो सीनियर के साथ। पहचाना तुम्हें? अरे ये वही है। ओहानी, सबको ये बात पता है क्या? बुरा लग रहा है? जो लड़की तुम्हारे पीछे थी उसने तुम्हें छोड़ दिया? समझो, ये रही जिसकी खबर हर जगह है, मिस शांत बिल्ली। तुम कब से क्वांगसो के इतने करीब आ गई हो? तुमने भी ये सुना? लेकिन ये सब झूठ है। मैं चलता हूँ, गुड लक। कांग्रेट्स। अच्छा सुनो, भैया के आने तक तुम ठीक से रहोगे ना? हाँ मॉम, रहूंगा। पता नहीं सुंजो कब आएगा। मैं क्या कोई बच्चा हूँ? और मुझे भी पर्सनल स्पेस चाहिए। अच्छा ठीक है अंजू, हम कल मिलते हैं, ठीक है? जाओ। ज्यादा गेम्स मत खेलना, ठीक है? नहीं खेलूंगा। जाओ। चलो। बाय। अरे वाह!
क्यों आई हूँ मुझे पता नहीं। चीजें इतनी जल्दी बदल कैसे गई? अभी कुछ दिन पहले ही हम डेट पर गए थे। ये कैसी आवाज थी? आंटी, युंजो, 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 युंजो क्या हुआ तुम्हें? दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है? तुमने मॉम को बताया था? वेकेशन? क्या करूं? अच्छा रुको रुको युंजो, मैं कॉल करती हूँ। हेलो बेक्सुंजो, तुमने घर के नंबर से क्यों फोन किया? युंजो को बहुत दर्द हो रहा है। युंजो, क्या हुआ उसे? लगता है उसकी तबीयत खराब है। मैं क्या करूं मैं? शांत हो जाओ। ओहानी शांत हो जाओ। शांत होकर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। युंजो को क्या हुआ है? उसके पेट में दर्द है। उसे उल्टी जैसा हो रहा है। क्या? फूड पॉइजन होगा। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे लिखो और वही करना, ठीक है? पहले देखो कहीं उल्टी करते वक्त उसका दम तो नहीं घुट रहा। उसे एक कोने में सुला दो। उसका शरीर गर्म रहना चाहिए। उसने कितनी बार उल्टी की है ये याद रखो। ओके ओके। फिर एम्बुलेंस को बुलाना। हेलो एम्बुलेंस। उसके बाद उसे पैरांग हॉस्पिटल लेकर आना। मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। ओहानी, युंजो का ख्याल रखना। उसकी अंतड़ियों में ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया है, जिसकी वजह से उसकी अंतड़ियां तन गई है। ट्विस्ट हो गए मतलब? इंटेस्टाइन्स के लूप एक दूसरे में उलझ गए हैं और ये काफी समय से हो रहा है। उसे सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी? नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। आपको जल्दी से डिसीजन लेना पड़ेगा। पर मैं कैसे बताऊं? डू द सर्जरी। बहुत ही आसान है। ओहानी, युंजो का ख्याल रखना। फिर ठीक है, सर्जरी शुरू कीजिए प्लीज। आ गए तुम? हाँ। सर्जरी हो रही है। मैंने सुना। अब कैसा है? हाँ, इंटेस्टाइन्स काफी ही ट्विस्टेड हो चुकी थी। सर्जरी कैसी हुई? हाँ, काफी अच्छी थी। चिंता करने की बात नहीं है। इंटेस्टाइन का एक पार्ट लोअर इंटेस्टाइन के अंदर चला गया था। ऑपरेशन करके उसको स्ट्रेट करना पड़ा। 1 हफ्ते में सारे घाव ठीक हो जाएंगे। हेलो। मॉम डैड शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। काफी डर गए होंगे ना? डॉक्टर ने तुम्हारी तारीफ की। तुम्हारी वजह से सर्जरी जल्दी हो पाई। अगर क्या करना है नहीं बताते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे कुछ नहीं पता था। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये एक तरह का इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है।
मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पता नहीं मॉम डैड की क्या हालत होगी। मैं पापा को कॉल करके आती हूँ कि वो चिंता कर रहे होंगे। ओहानी, मेरा फोन, पर्स, मेरा वॉलेट, ये सब कहाँ रख दिया मैंने? याद ही नहीं है, कुछ याद नहीं रहता मेरे। वैसे क्वांगसो के साथ वो जो हुआ था, उसने मुझे सब बता दिया। थैंक यू हनी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं कुछ गलत कर दूंगी। यंजो की भी चिंता हो रही थी। सब ठीक हो जाएगा। पहली बार मैंने सुंजो के मुंह से अच्छी बातें सुनी थी। मेरी सारी चिंता दूर हो गई थी। मैं तब तक रोई जब तक मेरा दिल शांत नहीं हुआ। हेलो, हाय, हेलो। हेलो, कैसे हो तुम? ओ, तुम आई, बहुत अच्छा लगा। फूलों की खुशबू अच्छी है। ओहानी, ये बार बार यहाँ पे क्यों आ जाती है? बैगुंजो, जिसने तुम्हें बचाया है उससे ऐसे बात नहीं करते। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा टेस्ट है ना? हाँ, वैसे भी वो मेरे लिए नहीं, भाई के लिए आती है। चुप रहो। सुंजो नहीं आया? देखा मॉम, मैंने कहा था ना। चुप रहो, आता ही होगा। अब हानी को घर वापस आ जाना चाहिए। फिर एक बार। और तुम आ गए। बैक्सुंजो, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन हानी को देखकर तुम भी खुश हुए ना? अब तुम ठीक हो? अब युंजू कैसा है? हानि अगर नहीं होती तो मुसीबत हो जाती। हाँ, हानि के बिना तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब कुछ ठीक है, वही बड़ी बात है। तो नए घर का काम कैसे चल रहा है? सब सही चल रहा है? हाँ, परेशानियां तो बहुत ही है। वो उस भूकंप की वजह से इंश्योरेंस वाले भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं, पर अभी बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। ये लो। ये क्या है? हमारा वो घर छोड़ते वक्त तुमने जो रेंट के पैसे दिए थे, उसने कहा कि वो पैसे नहीं ले सकती, तो वो ये सारे बचाती रही। अरे पर ये पैसे मुझे वापस क्यों दे रहे हो? ऐसा मत करो, तुम लोगों ने कितनी मदद की है। मैं नहीं रख सकता, ले लो वापस। प्लीज रख लीजिए ना, अगर नहीं लिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपना रेस्टोरेंट बड़ा करना चाहते हो और ऊपर एक अच्छी सी जगह भी बनाना चाहते हो, पर घर और हानि की चिंता में तुम ये सारी चीजें नहीं कर पाए, ये मैं जानता हूँ। पर फिर भी चलिए भी, ऐसा मत कीजिए। अब साथ मिलकर जो रहना है ना। हाँ, देखिए, मैं हानि की वजह से निकला था। पर ये हानि के अच्छे के लिए है। हानि के अच्छे के लिए? आपको अपनी बेटी के दिल की बात नहीं पता? क्या? दरअसल
हानि और संजो, आपको नहीं लगता कि वो दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या क्या छुपा रहे हैं? दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया है और संजो ने उसे सामने से किस किया। संजो ने? हाँ, मतलब संजो हानि को पसंद करने लगा है। हेलो युंजो, तुम फिर आ गई? हेलो गोरी। वो गोरी नहीं, नोरी है। सही कहा। हेलो नोरी। हेलो। देखो तो मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। सॉरी, तुम भी खाओगे ना? नूरी, नूरी। आई एम सॉरी, मुझे उतना याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में बहुत शांति अच्छी नहीं लगती, यहाँ मजा आता है। नोरी, तुम यहाँ हॉस्पिटल में काफी वक्त से हो? लगभग 1 साल 2 महीने से, इसलिए मुझे 4 ग्रेड में जाना पड़ेगा। क्या? तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना? अच्छा, तो अब तुम इसे पढ़ाओगी? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? वो स्कूल स्टूडेंट है। देखते हैं। उसको नहीं आता और उसे पढ़ाएगी। मैं उसे टेबल्स तो सिखा सकती हूँ ना? वो तो मैंने 2 ग्रेड में ही पढ़ लिया। और रियली? अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? छोड़ो, केक खाते हैं। थैंक यू सो मच। शेफ, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ? आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वो हो गया? हाँ बिल्कुल, सब साफ कर दिया। ओके, वेरी गुड। क्या बात है शेफ, हानि को कुछ हुआ है क्या? अरे हानि को क्या होगा? हाँ, चलो अब तुम घर जाओ। हाँ शेफ, चलता हूँ। ठीक से जाना। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारा टेम्परेचर देखते हैं। नूरी को हमेशा बुखार आता है। वो 6 महीने से आईसीयू में था, पता है ना? इसलिए उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे लापरवाही मत कीजिए। हमें माफ कीजिए। ध्यान रखिए। मुझे माफ करना नूरी। अब तो मुझे आदत हो गई है। जब से युंजो यहाँ आया है मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने सियांगजो से काफी कुछ सीखा और हानि ने भी मुझे बहुत हंसाया। वैसे मैंने जोक्स तो कभी नहीं मारे थे। ठीक है, अभी आराम करो, बुखार उतर जाए तो पढ़ाई करेंगे। हाँ हाँ। नूरी को कौन सी बीमारी है? लगता है दिल की बीमारी है। कितना बुरा है ना। उस छोटे से बच्चे को रोज टेस्ट करने पड़ते हैं, दवाई लेनी होती है। कितना बुरा है। वो जो चाहे वो कर भी नहीं सकता। लेकिन अब रोने से क्या होगा? सही कहा। अगर तुम होते तो उसकी मदद जरूर करते। मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि तुम जीनियस हो ना, इसलिए अगर तुम डॉक्टर बनना चाहो तो वो भी बन सकते हो। अगर तुम डॉक्टर बन जाओ तो अच्छा होगा। फिर तुम नूरी जैसे लोगों को ट्रीट कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे। तुम सब तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। बोलो कैसा लगता है तुम्हें? डॉक्टर बन जाओ ना। अब क्या तुम्हारे कहने से मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा? हाँ तुम बन जाओ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखते हैं।
तुम्हारा डॉक्टर बनना बेस्ट है, मैं बता रही हूँ। व्हाइट कोट में बेक्सुंग जो, मुझे तुम्हें वैसे ही देखना है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो क्या तुम रोज हॉस्पिटल में उससे मिलने जाती हो? इसका मतलब तुम रोज बेक्सुंग जो से मिलने जाती हो? हाँ, क्योंकि आंटी दोपहर को चली जाती है ना, फिर हम दोनों ही रहते हैं। अगर बेक्सुंग जो का भाई और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे तो? ये क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, ज्यादा बनो मत, हमें सब दिखाई देता है। वो हानी क्या कह रही हो तुम? व्हीलचेयर में खेलना अलाउड नहीं है। ये कैसे पढ़ोगे? हाउ मच इज इट? हाँ, और उसका मतलब? वो कितना है? सही कहा। चलो थोड़ा खाना खाते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर नोरी, हैप्पी बर्थडे। हाँ, चलो खाते हैं। कांग्रेट्स युंजो। थैंक यू सियोंगजो और हानी दीदी, मुझे पढ़ाने के लिए थैंक यू। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए तो कॉल कर देना। फोन नंबर है ना? हाँ, करूँगा। नोरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, ये बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी। नोरी, युंजो मैं ठीक हूँ। मैं ठीक होकर तुम्हारे घर भी आऊँगा। जरूर, मैं भी आऊँगा। हाँ, तुम्हें आना चाहिए। जरूर आऊँगा। नूरी नहीं रोया। कितना अच्छे से खुद को संभालता है ना वो। वो ऐसे ही सबको डिस्चार्ज होते हुए देखता है। उसे तकलीफ तो होती होगी। युंजो चले? डिस्चार्ज मिल गया। हानी, तुम्हारा स्वागत है। पापा, ये सब क्या है? जानता हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और कुछ चीजें बस अपने हिसाब से कर रहा था। पापा, अब तक वो छोटा रूम बहुत अनकंफर्टेबल था ना? तुम्हें हॉस्पिटल में रोते हुए देखकर मुझे लगा कि तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। वेलकम हानी। आंटी, तुम्हारा स्वागत है हानी। थैंक यू सो मच। और मेरे रूम का क्या? तुम्हारा रूम तुम्हारे भाई के साथ है। नहीं, मैं अपना रूम इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। चिल्लाने के बजाय तुम्हें दीदी को थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, इट्स ओके। जो मैं कर सकती थी वही किया। मैं थक गया हूँ, खाने पे मिलते हैं। अब जाकर आराम कीजिए। और तुम संभाल लोगी? हाँ, बाकी का मैं कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह हनी, वेलकम बैक। ओह, तुम अब तक सोए नहीं? प्यास लगी है। युंजो, अभी तक सोए नहीं तुम? वैसे इस बार तुमने मेरी बहुत मदद की है।
थैंक यू। पागल, पर बहुत क्यूट है। 언제부터였는지 너를 본 순간부터 1분 1초마다 네가 자꾸 생각나. 너는 뭘 하는지 지금 어디 있는지. तो यहाँ बैठे हो तुम? पता नहीं कैसे, लेकिन मैं वापस आ गई। अब सब ठीक है ना? हाँ। आप आ गए? तुम अब तक यहाँ कैसे? बस ये खत्म करके ही जा रहा था। पहले आप ऊपर जाइए ना। हानी, ऊपर जाओ। हानी, इंतजार करना। आज बोंग जुंगू की कोशिश सक्सेसफुल होगी। यस। हानी, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया ना? जानता था, इसलिए मैंने ये बनाया है। हाँ, बैठो बैठो। अंकल बैठिए ना। लीजिए, खाकर बताइए। ये बोंगजुंगू की रेसिपी है, बोंग डम्पलिंग्स। ओह। हाँ, इसका नाम है बोंग डम्पलिंग्स। इसके अंदर एक और डम्पलिंग है। हाँ, ये मैंने तुम्हारे पापा से स्पेशल परमिशन लेकर बनाया है। पता नहीं कैसा होगा। अंकल के लिए भी देता हूँ। खाकर बताइए अंकल कि कैसा बना है। मैं कब से आप लोगों के यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। पर जुंगू, मैंने तो खाना खा लिया। हाँ, तुमने खाना खा लिया? ओह हानी। पापा, वो इसका शेप बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? एक बार ट्राई तो कीजिए। शर्म भी आ रही है और मुझे डर भी लग रहा है। जुंगू, हमने फिर से सुंगजो के घर रहने का फैसला किया है। यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है और कमरे भी छोटे हैं और दुकान भी तो बड़ी करनी है ना। सुंगजो के परिवार ने हमें बुलाया है, इसलिए हमने ये सोचा कि तुम्हें बता दें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे परमिशन ले रहा हूँ। ரொம்ப சந்தோஷம், நீ ஒத்துக்கிட்ட. சானியா, ப்ளீஸ் இத ஒரு ஸ்பூனாவது டேஸ்ட் பண்ணி பாரு எனக்காக. நல்லா இருக்கும்.
ஜிம்மியை நினைச்சா ரொம்ப பாவமா இருக்கு. ஆனா ஜோ வீட்டில் மறுபடியும் தங்க போறது நினைச்சா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு. எப்படி இருக்க போறேனோ தெரியல. ஓ, எங்க வச்ச? நான் கண்டிப்பா கொண்டு வந்தேனே. ஓ, இது உன்னோடதா? என்னோடதான். நீதான் திருண்ணியா? ஹே லூசு, அது இங்க கீழே கடந்தது. உன்னோட திங்ஸ் அப்ப யாராவது திருட பாப்பாங்களா? ஏன் திங்ஸ்க்கு என்ன குறைச்சல்? திருடுறதுல கூட அதான் திருடணும் இதான் திருடணும்னு ஏதாவது இருக்கா என்ன? இந்த வீட்ல இருந்தாவே உனக்கு வாய் ஜாஸ்தி ஆடும் போல இருக்கு. நேத்தி வரைக்கும் நீ எப்படி இருந்தன்னு மறந்துட்டு பேசுற போல இருக்கு. என்ன பேசுற? இது பாரு, உன் மனசுல ஏதோ நினைச்சுக்கிட்டா அதுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது. அது உன்னோட ப்ராப்ளம். இப்போ எதுக்காக என்ன தேடி வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்க? நான் இங்க இருக்கிறது பிடிக்கலன்னா அதை சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே? உனக்கு போர் அடிச்சா என்ன வந்து டீஸ் பண்ணுவியா? என்னது, எனக்கு போர் அடிச்சதுனாலயா? ஆமா, நான் ஏன் அப்படி பண்றேன்? அதான் என்னன்னே தெரியல. உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு வெறுப்பேத்தணும்னு தோணுது. ஆனா முதல்ல பிரச்சனை நீயே ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துக்கு சண்டை போடுற. நீங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கதை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் கொஞ்சம் தூரமா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜூனு வேற இருக்கான்ல. காலேஜ்ல எந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிருக்க நீ? இன்னும் முடிவு பண்ணலப்பா. எந்த சப்ஜெக்ட் கிடைச்சாலும் மறக்காம நீ அதை படிக்கணும் என்ன? ஆனா ஸ்டூடெண்டோட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கோர்சஸே ஆஃபர் பண்றாங்க. அதனால நான் எதுவும் டிசைட் பண்ண முடியாதுப்பா. ஆனா எனக்கு என்னமோ நீ பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சா நல்லதுன்னு தோணுது. எனக்கு சுத்தமா அதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. ஏண்டா? வண்டி அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிங்க, நான் இறங்கணும். கிளாஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கியா? ஏய் ஜோ, என்ன? ஹேய், இந்த ஜோயே இவ்ளோ கோவக்காரனா இருக்கான். அவனை புரிஞ்சிக்கவே முடியல. திரும்பவும் ஹார்ஷா பிஹேவ் பண்ணானா? இந்த தடவை முன்னாடி விட கொஞ்சம் வித்தியாசமா நடந்துக்கிட்டான். ஏனே தெரியல, ஏன் இப்படி பண்ணானியா? அவன் உன்னை ஆல்ரெடி கிஸ் பண்ணிருக்கால, அது மட்டும் இல்லாம ஹக் வேற பண்ணிருக்கால, அதுக்கப்புறமும் ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றான்? என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல. அவனுக்கு என் மேல அக்கறை இருக்கா இல்லையான்னு என்னாலயே தெரிஞ்சுக்க முடியல. உன்னை நினைச்சாலே கஷ்டமா இருக்கு. கோமினா, உன்கிட்ட நல்ல ஐடியா ஏதாவது இருந்தா சொல்லு. அவனுக்கு என்ன பிடிக்குமா இல்லையான்னு நம்ம எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஐடியா சொல்லு. நீயே கொட்டாவி மெத்தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கொட்டாவியா? So now the word concluded is basically the same as to finish something. You start it, it's over, so therefore it's concluded. Now, the second sentence we're going to look at, tariffs lowered on industrial goods and services. In this particular sentence, கொட்டாவிங்கிறது பரவக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன். யாராவது கொட்டாவி விடுறத பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கும் வந்துடும். வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நான் கொட்டாவி விட்டா கண்டிப்பா பக்கத்துல இருக்கிற ஜோவும் கொட்டாவி விடணும். அப்படின்னா சீக்கிரட்டா அவன் என்ன வாட்ச் பண்றான்னு அர்த்தம். கண்டிப்பா அவன் என்ன வாட்ச் பண்றான். எஸ்.
நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என் லைஃப்ல எதுக்கும் கவலைப்பட்டதே இல்லை. என்னை இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக பார்த்துக்கிட்டதுக்கு என் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஆமா, நீ நானும் இது வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த உலகம் நம்ம 2 பேரையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. இருக்காதா பின்ன? நம்ம 2 பேரையும் பொருத்தமான ஜோடி நினைச்சிருக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், சானியா திரும்பவும் எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டா. அவளை பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கிற உலகத்துல வாழாத மாதிரி நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா என்னுடைய எண்ணம் தப்புன்னு சமீபத்தில் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது. அதனால தான் நான் சொசைட்டியோட நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ண நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுவும் இப்போ வந்த ஐடியா தான். எது எப்படி இருந்தாலும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எரிக்கா. என் மனசில் இருக்கிறத வெளிப்படையாக ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீ ஒருத்தி இருக்க. உன்னால் என்ன கண்டிப்பாக மறக்க முடியும்னா அதை என் கண்ணை பார்த்து சொல்லு. ஹே சானியா, சானியா, நல்ல வேளை சமயத்துக்கு வந்த. இங்கே வா சானியா. என்கிட்ட டைமிங் பற்றி சொன்னது உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல? கிஸ் டைமிங் தான். வீட்டில் நான் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. நடுவில் ஏதாவது சொதப்பிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை அவகிட்ட எப்படி சொல்லி சமாளிக்கிறது? ப்ளீஸ் அதையும் கொஞ்சம் சொல்லி அவளை கிஸ் பண்ண அப்புறம் பார்க்கலாம். அது எனக்கு புரியுது. ஆனால் அந்த டைமிங் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் சரி, நீ கொஞ்சம் இப்படி வந்துடல, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்னால முடியாது. அன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ண. இதுக்கு போய் ஏன் இப்படி என்ன வச்சு வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கறியா? சரி, நீ வாடா இப்படி வா. வந்து இப்படி நில்ல. ஜோதா கரெக்ட்டா பண்ணிருக்கான். நான் இப்போ என்னோட கையை இப்படி வச்சுக்க போறேன். ஆக்சுவலா உன்னோட ஃபேஸ் இப்படி இருக்கு. நீ லைட்டா லிஃப்ட் பண்ணு. புரிஞ்சுதா? உன்னால என்ன மறக்க முடியும்னா இது நீ பார்த்தல. டைமிங் மேட்ச் ஆகாது நான் தான் சொன்னேனே. நான் சொல்ல வேண்டியது சொல்லவே இல்லை, அதுக்குள்ள கிஸ் பண்ணிட்டான். இதே மாதிரி அங்கேயே நடந்துச்சுன்னா? கிறிஸ்டன், ராக்கெட்டை கையில வச்சு ட்ரை பண்ணி பாரு. இது உன் கையில இருந்தா நீ கம்ப்ளீட்டா வேற ஆளா மாறிடுவ. நம்பிக்கை, போட்டி, குறிக்கோள், வெறி எல்லாமே உன் கண்ணுல தெரியும். ஏய் எரிக்கா, நான் பயந்தே போயிட்டேன். கீழே விழுந்துட்டா என்ன ஆகுது? பாத்து பாத்து ஜாக்கிரதையா பண்ணு. நீ எனக்காக எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றேம்மா. இதெல்லாம் நான் ஒருத்தையே பண்ணிட்டு இருப்பேன்ல, அப்ப எவ்வளவு போர் அடிக்கும் தெரியுமா? இப்ப நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் போர் அடிக்காம இருக்கு. மனுஷங்களால தனியா வாழ முடியாதுன்னு பெரியவங்க சும்மாவா சொல்லிட்டு போனாங்க என்ன? ஆமா, கரெக்ட் தான் ஆண்டி. சானியா, ஜோ ரூம்க்கு போய் அவனோட லாண்டரி துணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வா. ஜூனவும் நாளைக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டு போனுமா. நான் அதை மறந்தே போயிட்டேன். ஓகே, நான் போய் கொண்டு வரேன். அவனோட வார்ட்ரோப் எங்க இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும்ல? தெரியும் ஆண்டி. கப்பல் டி-ஷர்ட். இன்னும் வச்சிருக்கா?
டைம் ஜாப். என் ரூம்ல உனக்கு என்ன வேலை? வந்துட்டியா? ஜூனோவோட ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போக வந்தேன். எடுத்துக்கிட்டல போக வேண்டியதானே. அதுக்கப்புறமா ஏன் இங்கேயே இருக்க? ஆக்சுவலி கிறிஸ்டியன் உன்னை பத்தி ஒரு விஷயம் சொன்னான். நீ வீட்டை விட்டு வெளியே தங்க போறதா அவன் வளர்னா. அதை கேட்ட உடனே எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்துச்சு. அது உண்மைதான். ஆ? நான் இந்த வீட்டை விட்டு போக போறேன். ஏன்? ஏன் வா? உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நான் வெளில போகணுமா? நான் அப்படி சொல்லல. ஒருவேளை நான் இந்த வீட்டுக்கு திரும்ப வந்ததுனால தான் நீ வீட்டை விட்டு போறியா? இத பாரு, இதுக்கும் உனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்ல. தேவையில்லாம எதோ கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காத. வீட்டை விட்டு போக போறியா? இதனால வரைக்கும் நான் உங்க வளர்ப்புல வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். இதுக்கு மேலேயும் அப்படி இருக்க எனக்கு இஷ்டம் இல்ல. அதனால இன்னில இருந்து என் சொந்த கால நிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் எங்கேயாவது ஒரு வீடை வாடகைக்கு எடுத்து பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணிக்கிறேன். எந்த விதமான ஆதரவும் தேவைப்படாம நான் வாழ கத்துக்க போறேன். இந்த சேலஞ்சில் நான் எப்படியா ஜெயிக்கணும், என்ன நான் ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். அதனாலதான் இந்த முடிவு. சரிப்பா, உன் ஐடியா நல்லதா தான் படுது. என்னங்க நீங்களும்? சானியா வேற வீட்டுக்கு வந்திருக்கா பாரு ஜோ. என்னோட முடிவுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு எந்த சம்மந்தம் இல்லம்மா. இது என்னோட வாழ்க்கை. சரி, உன் விருப்பப்படியே செய். ரீனா, நிஜமாவே ஜோ வீட்டு விட்டு போறானா? நான் இந்த வீட்டுக்கு திரும்ப வந்திருந்தாலும் அவன் இந்த வீட்டை விட்டு போக போறான்.